Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Bilal Said Malik, and my companion is Zainul Abidin, and we are both from Section D. So we have been assigned with the project of discrete. So it's basically sorry, that how we use the Prolog language. So it's basically a declarative language used in AI. Now we use Python, but it was used before. So here we give the facts and we get the answers that either it's true or not. So there are four rules for the declarative language. The four rules are that number one rule is that after every statement we have to put a full stop. If we want to use OR gate, we have to write a semicolon. If we have to use an AND gate, we have to write a comma. And this condition, if this means if and only if. So here I have an example in front, और मैं इस एग्जाम्पल को बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रही है और एग्जाम्पल रन करूंगा. तो सबसे पहले मैंने ये एग्जाम्पल 1 ये जो है प्रोलॉग उसको खोल लेता हूँ साथ. और ये जो एग्जाम्पल 1 है जो मैंने अभी खोली हुई है, ये अगर मैं देख डॉक्यूमेंट्स में मेरे और प्रोलॉग फोल्डर में ये मेरे पास एग्जाम्पल 1 पड़ी हुई है. और अगर मैं इसको रन करूँ एग्जाम्पल 1 को, बेसिकली यहाँ पे मैंने ये किया है कि ये फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं कि ये प्रेडिकेट है बेसिकली. और यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे C++ से थोड़ी सी डिफरेंस है. देयर इज नॉट मच डिफरेंस. द ओनली डिफरेंस इज दैट there we call this burger as an argument that we are passing a string. Rather, uh, it's not argument here. It's just that we are passing a predicate, and this is the food is the predicate, and burger is called, and the word is called artic. So basically here it says that burger is a food, sandwich is a food, pizza is a food, sandwich is a lunch. So this is a simple predicates and facts. So I have described over here rule. The third thing is the query. So I would just to discuss the query in the compiler, and this is the rule that it says basically that the food, that it is a meal if and only if it is a food. मील तभी होगा जब वो फूड होगा. ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये फैक्ट्स हैं. हम इसको रन करते हैं. पहले हम इसको सेव कर लेते हैं. और मैंने यहाँ पे खोला हुआ है ये कंपाइलर प्रोलॉग. इसमें यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी होती हैं. सॉरी. और इसके अंदर हमने लिखना है एग्जाम्पल 1. इसकी ब्रैकेट्स क्लोज करनी है और डॉट डालना है. और ये ट्रू हो गई क्योंकि ये रन हो गई. फिर हम इसके अंदर ये पिछली कमांड से बेसिकली इसकी हम कमांड रन कर लेंगे. मैंने रन की हुई थी कुछ. तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि फूड इज पिज़्ज़ा. यस इट्स ट्रू, फूड इज पिज़्ज़ा. और वहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि हमने डिक्लेयर किया फैक्ट में, इसलिए आंसर सही आ गया है. एक और हम कमांड रिटर्न कर लेते हैं, डिनर सैंडविच इज अ डिनर और नॉट. सो सैंडविच इज नॉट अ डिनर बिकॉज यहाँ पे हमने सॉरी ये दूसरी है. यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि सैंडविच इज अ लंच और सैंडविच इज अ फूड बट नॉट इट्स नॉट अ डिनर. So this is how the example is basically working. और ये प्रोलॉग अगर मैंने डाउनलोड की बात है तो मैंने डाउनलोड यहाँ पे PDF है इससे डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया और रन किया था. अच्छा, अब सबसे पहले नॉलेज बेस्ड अगर बनानी थी तो नॉलेज बेस्ड में व्हेन आई सॉ द लेक्चर ऑफ सर अरशद इस्लाम प्रोवाइडेड ऑन द गूगल क्लासरूम. So there were sir talked about 3 methods, and there are certain tabs which has list of courses, student details, instructor details, classroom details, and mock sheet. So Sir Arshad Islam told us that there are 2 ways. Either you could write a C++ program, but that's rather difficult. So he said that it's an easy way that you write just command on the Excel sheet. So I've just write the command, and he has told this also. So there are 2 ways. या तो आप string रख सकते हैं, या आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एड्रेस. स्ट्रिंग अगर आपने लिखनी है तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास डालने पड़ते हैं, और एड्रेस लिखना है तो देयर इज नो नीड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. सबको जो हम गैप है उनमें एक हम कॉमा का गैप डालेंगे सब में. और जैसे यहाँ पे हमें बताया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे कि इट्स रिटन दैट स्टूडेंट रोल नंबर कॉमा नेम. So it means that we should have we can write the address of roll number as well as name, but we should have a string for the student and bracket. So I just wrote like this,
concatenate, this is the command, and so if just I go to students list like this and I just go over there, so it just says student, student, it's in the inverted commas, so it's student and the bracket is also there. So then before it's not in inverted commas, then there is a comma which is to separate and it's written over there, so we have just put it in the inverted commas. And in the last we have written C4 because the name was written in C4, and obviously we have to close the bracket and put a dot in the end. So it's like this how it works. It's not really much difficult, though it's not difficult, but it sometimes kind of mess up because there is so much errors in semicolon and inverted commas. So it's not in this file actually, but students list is easy, but mock date sheet, there are some difficulties. Yes, I got some errors over there. तो अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे भी हमने सिंपल कंकैटिनेट किया, इंस्ट्रक्टर डिटेल्स डाली हैं, उसके बाद हमने एड्रेस डाला है B4, उसके बाद हमने C4 डाला है और आखिर में हमने डॉट डाल दिया। यहाँ पे हमने कैपेसिटी बतानी थी और साथ जो उसका रूम नंबर है वो बताना था, तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है और ये कैपेसिटी बताई हुई और सेम वही कंकैटिनेट की कमांड यूज़ की है और हमने कहा है कि B4 और C4 को आप कंबाइन कर दें। अच्छा, ये जो मॉक डेट शीट है ये थोड़ी सी मुश्किल, अच्छा ये जो मॉक डेट शीट है ये थोड़ी सी मुश्किल थी। मॉक डेट शीट, वेयर इज मॉक डेट शीट, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गो। ये जो मॉक डेट शीट थी इसमें थोड़ा सा ये काम था कि इसमें हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने एक सेल की कमांड लिखती तो हमें बाकियों की भी लिखनी थी, इसलिए क्योंकि हमें हर किसी की सेपरेट लिखनी थी। तो आई जस्ट स्टेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स की हमने अगर यहाँ पे रखी है ABCD की, तो एग्जाम टाइम और सब कुछ, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो उसके आगे हमने दे दिया कि वो 1040 से 1140 है और इट्स फ्रॉम 9 to 10, और ये डे बता दिए साथ। और ये इसी तरह ही हमने एक कमांड तो नहीं थी इसमें हमें हर किसी के लिए बतानी पड़ी, जैसे नीचे के लिए हमने अलग कमांड बताई, और इस तरह हम अगर नीचे देखें उससे तो हमने उसके लिए अलग ये कमांड्स डिस्क्राइब किए। यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये टाइम सारा बताया। तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो स्ट्रिंग है कंकैटिनेट की कमांड लिखी, क्लासरूम डिटेल्स ये जिस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी थी कि ऐसी कमांड थी जहाँ पे हमें खुद से स्ट्रिंग लिखनी पड़ी, तो हमने उसकी स्ट्रिंग लिखी क्योंकि हमें उसका प्रोवाइड जो सिंटेक्स था जो यहाँ पे बताया हुआ है कि कोर्स CID कॉमा डिटेल चाहिए थी, कोर्स सेक्शन, और ये सारे हमने इस तरह प्रेडिकेट्स बना दी RID कॉमा कैपेसिटी के साथ। ये इन दोनों का सेल नंबर दिया, ये कैपेसिटी हमने बता दी, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में डाला, बीच में सेमीकोलन डाला, और ये इसका एड्रेस दिया, और इसको भी हमने इसके बाद डॉट डाला, और इसको हमने लिखा इन्वर्टेड कॉमास में। तो इस तरह हमने जो है वो बना ली नॉलेज बेस्ड, और ये इतना मुश्किल नहीं था, मेसी था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। सो दैट वाज हाउ इट वाज डन। और अब अगर हम बात करें, अच्छा जी, सो अब Zen, hello, so we have seen that how this example have worked. We have already seen that food, pizza, dinner, sandwich. So let's talk about our code. So I have given, although it's not a good convention to write this, it's a Z file where I don't want to type, so I just keep it short. So I could just type it. So this is the knowledge base. I have made it over here, and I have pasted all the files, and in the end there are the queries. So the first query is that basically it wants to ask that if the student name is passed, and it wants to ask that if the paper is two papers are on the day, or two papers are on the same day or not. So यहाँ पे हमने सिर्फ पास किया फंक्शन, स्टूडेंट का नेम पास हुआ, हमने उसकी सेक्शन आईडी निकाली, सेक्शन आईडी निकालने के बाद हमने उसके यहाँ पे जो कोर्स आईडी थी वो पास की यहाँ पे हमने, और हमें यहाँ पे हमने इसकी कोर्स आईडी निकाल चुके थे सेक्शन आईडी से, फिर यहाँ पे हमने इसको कोर्स आईडी यहाँ पे पास करती हमने उसकी, तो हमें उसका डेट मिल गया, स्टार्टिंग टाइम मिल गया, एंड टाइम मिल गया, और रूम आईडी मिल गई। इसी तरह हमने उसके दूसरी दफ़ा चेक की कि हमें कोई ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस क्योंकि चेक करता है, तो उसके बाद हमने दूसरा देखा कि सेक्शन आईडी निकाली, पास टाइम वो निकाला, और कोर्स आईडी पास की,
और हमने चेक किया कि एग्जाम टाइम जो दो अगर आए हमारे पास तो उनके वो इक्वल हैं, डेट सेम है या नहीं है। अगर डेट सेम है और कोर्स डिफरेंट है तो ट्रू है, ये रिटर्न कर रहा है, उसके पास दो पेपर हैं। अगर नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए हमने इस तरह इसको कुछ लिखा है और हम इसको क्वेरी को रन करते हैं जल्दी से। ये मैंने पहले रन की हुई थी कुछ कमांड, इसलिए आ रही हैं, अभी इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक्स आती हैं, इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, डॉट आखिर में आता है, एंड आई वुड जस्ट राइट माय नेम ओवर हियर। सो माय नेम इज बिलाल Said and Malik. I hope there's no typing mistake. I hope. Oh. So yes, I haven't compiled the file. So I have to compile the file first. So yes, that's the name of the file is Z, and I have put in the documents. So no need to give the path. So this is the true. It has passed. So I would just, this is the what I have written before, and yes, it's false because it have to give the false. ये हमारा बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि इसको false ही देना चाहिए था, और यहाँ पे हमारे पास जो पास हुआ, और ऐसे ही बिल्कुल इसको काम करना चाहिए था क्योंकि हमारे दो पेपर नहीं हैं। अच्छा जी, क्वेरी नंबर 3 ये थी सिंपल। इसमें हमारे पास जो है वो इतना कोई मतलब ये इतनी मुश्किल नहीं थी। इसमें कोर्स नेम 1 पास हो रहा था और कोर्स नेम 2 पास हो रहा था, और हमारे पास दो कोर्सेज जो हैं इसमें से पास हो रहे थे, और हमने उनको चेक करना था कि ये हमने बेसिकली यही किया यहाँ पे कि हमने दोनों को एग्जाम टाइम में पास किया, उनकी पहले कोर्स आईडी निकाली, फिर वो हमने उनको चेक किया कि वो सेम रूम, हमने उनका चेक किया कि वो सेम डे हो रहे हैं। ये हमने पहले सबसे पहले डे के लिए चेक किया, फिर हमने स्टार्टिंग टाइम के लिए चेक किया, फिर हमने एंड टाइम के लिए चेक किया, और ऑब्वियसली इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रूम। ये सिर्फ टाइम के लिए था। उन्होंने हमसे टाइम के लिए क्वेरी पूछी थी। अगर हम यहाँ पे देख भी लें तो उन्होंने थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि एट द सेम टाइम और नॉट, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको टाइम के लिए चेक किया, रूम के लिए नहीं चेक किया। इसको भी हम रन कर लेते हैं। सबसे पहले उसको पाथ दे देते हैं ताकि कोई मसला ना हो। अच्छा, इसको भी हमें खुद ही रन करना पड़ेगा, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। एग्जाम कोलेशन, अच्छा जी, इसको ऐसे कर लेते हैं, आखिर में हम डॉट डाल देंगे। अच्छा, कोर्स नेम जो पास 1 हो रहा है वो यहाँ से कोई भी कॉपी कर लेते हैं। कोर्स कहाँ लिखे हुए हैं, कोर्सेस ये लिखे होंगे, हाँ ये लिखे हुए। अच्छा, अगर हम इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स को देख लें, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स को हम कॉपी करते हैं और हम फर्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं, एंड द सेकंड आर्गुमेंट वी वुड टेक इज समथिंग लीनियर अलजेब्रा। लेट्स टेक लीनियर अलजेब्रा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं सेकंड आर्गुमेंट। आखिर में डॉट भी है, और मेरे हिसाब से ये जो मैंने चेक किया था इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ये सेम नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए इसको। सो लेट्स सी, यस इट हैज रिटर्न फॉल्स। सो अगर हम देखें एक्सेल शीट में तो हमें पता लगेगा कि अगर हम देखें हम अगर यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो कोलिजन नहीं हो रही उनकी क्योंकि वो सेम डे पे नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम मार्केटिंग पास करते हैं यहाँ पे एक, और यहाँ पे अगर मैं पास करता हूँ मार्केटिंग, सॉरी वहीं से कॉपी करता हूँ डायरेक्ट, मार्केटिंग, वेयर इज मार्केटिंग, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, मार्केटिंग एंड डिजिटल लॉजिक डिजाइन का सेम दिन पेपर है 3 में एक्सेल खोल के। ये रिटर्न ट्रू करना चाहिए इसको, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। एक्सेल फाइल अगर हम खोलें तो एक्सेल फाइल में कहाँ पे, इंस्ट्रक्टर डिटेल्स, क्लासरूम डिटेल्स, सॉरी। अच्छा, अगर हम दो कोर्सेज पास कर रहे हैं तो कोर्स डिटेल्स में होना चाहिए, कोर्स डिटेल्स यहाँ पे होगा कहीं। सो बेसिकली
ये इंस्ट्रक्टर नेम है, ये क्लासरूम डिटेल्स है, ये स्टूडेंट्स लिस्ट है, सही। और ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देखेंगे, एक सेकेंड, Zen, are you there? So this is the marketing management paper. It's on third, and it's from starting from 9 to 10. And this is the logic design. It's on the same paper, same day. So it has returned true, and it's true. So let's see over the third command. So let's go and see what is the third command. The third command is switch possible, and let's copy this and let's just paste it over here. So room number 1, and we are passing room number 2 and day and starting time. So I will just copy from there. So if you open the Excel file, it's written over here, instructor details, classroom. So 305 and 304 and 307 have the same seating capacity, 44 and 44. So I would just write these two over here, and I would just copy paste seat 304 and 307. So I have to copy paste it over here. So it's 307 and it's 304. Past DA is 1. And start time is ST, means the start time. So I would just copy paste it. So it's 9. Where is 9? It's written over here. Copy and paste. Run this, it should return true. Oh, I haven't changed this. So 304, 30. Yes, it's returned true. So obviously पहले ही चेक हो चुका है, मैंने 308 गलती से पास किया तो फॉल्स आ गया। वैसे हम दोबारा कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं 3011 डालूँ तो फॉल्स आ चुकेगा। ये 377 और 4 के इक्वल है सीटिंग कैपेसिटी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, 5 कमांड रह गई हमारे पास। इसमें है जी कि सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं की है कमांड। इसमें सिंपल ये था कि हमने 2 कोर्सेज पास किए थे, उनका डे इक्वल है, सॉरी ये कमांड हमने करनी थी। तो अगर उनके बेसिकली रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 पास हो रहा है, डे पास हो रही है, स्टार्टिंग टाइम पास हो रहा है, तो हमने चेक करना था कि उनकी कैपेसिटी सेम है। उनकी कैपेसिटी सेम है, हमने पहले 1 की निकाली, फिर 2 की निकाली, हमें पता लगा कैपेसिटी सेम है। अगर कैपेसिटी सेम है तो उस दिन एग्जाम हो भी रहा है, मतलब ऐसा ही है कि ऐसा कोर्स है जिसका पेपर ही नहीं है, तो फिर मैं उसे कैसे स्विच पॉसिबल कर सकता हूँ। तो हमने चेक किया कि उसका पेपर है भी या नहीं, तो मैंने एग्जाम टाइम में इसको पास कर दिया और मुझे पता लगा कि ऐसे एग्जाम है या नहीं है, इसलिए ये इस तरह हुआ कुछ। अच्छा, अब क्वेरी नंबर जो 7 थी उसमें हमने स्टूडेंट 1 को पास किया, स्टूडेंट 2 को पास किया और कोर्स नेम पास किया। इसमें बेसिकली हमने ये चेक करना था कि सेम सेक्शन है या नहीं है। तो सेम सेक्शन कब होगा, जब हम स्टूडेंट 1 पास करें, स्टूडेंट 2 पास करें और कोर्स जो पास करें, इन तीनों की सेक्शन आईडी सेम हो। तो मैंने इन तीनों की सेक्शन आईडी सेम करने के लिए सिंपल कंडीशन लगाई कि अगर सेक्शन 1 और कोर्स आईडी सेम है और स्टूडेंट 1 और कोर्स की जो सेक्शन आईडी है वो सेम है, और फिर स्टूडेंट 1 की सेक्शन आईडी और स्टूडेंट 2 की सेक्शन आईडी सेम है, तो ये ट्रू है। इसी तरह मैंने ये सेक्शन आईडी पहले इसकी निकाल ली, पास करके मैंने कोर्स आईडी नंबर, फिर ये R1 पास किया, ये स्टूडेंट 1 पास किया, स्टूडेंट 2 पास किया, R1 R2 निकाल लिए, रूम 1 रूम 2 जो सी जो भी बनता है उनका सी जो भी बनेगा, और उसके बाद मैंने चेक कर लिया सिंपल। और इसको अभी हम रन कर लेते हैं, हैव सेम सेक्शंस और नॉट। तो इसमें मुझे 2 स्टूडेंट्स पास करने पड़ेंगे। सो तो ये इसमें मैंने 2 स्टूडेंट्स पास किया, आखिर में डॉट लगा दिया। अच्छा, स्टूडेंट 2 पहले पास करते हैं। स्टूडेंट 2 के लिए मैं अपना ही कोई नाम ले लेता हूँ, अपना नाम ले लेता हूँ। कहाँ पे होगा मेरा नाम, डी सेक्शन कहाँ पे है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, बिलाल सईद मलिक।
तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपल, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, और दूसरा ये अनस जो मेरे साथ मेरी क्लास में है, क्योंकि स्पेसिस थी हर सेक्शन के बाद, तो ये डी में ही पढ़ता है और मेरा साथ ही है, तो इसको भी मैं रन कर लेता हूँ। और हम डिस्क्रीट जो है वो हम साथ ले रहे हैं, तो दोनों का कोर्स है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, तो हम डिस्क्रीट देख लेते हैं। डिस्क्रीट कहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ये लिखा हुआ है CS C। और अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पार्स कोर्स नेम, ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि हम एक सेक्शन में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं यहीं पे सिंपल अगर मैं यही उठा के लिख दूँ कि हम साइकोलॉजी सी ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तो ऐसे कॉपी किया इसको हमने यहाँ पे, अगर यहीं पे हम इसको लिख देते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जो कि फिर सही हो गया हमारे लिए, क्या ये प्रूफ कर गई स्टेटमेंट। फिर लास्ट क्वेरी हमारे पास लास्ट क्वेरी में हमारे पास सिंपल ये था कि we have to check that if the past teacher जो पास हुआ पैरामीटर एरिटी जिसको हम कहते हैं, जो चेक हुई है, जो टीचर नेम है, जो वो हम सबसे पहले मैंने कमेंट्स में लिखा है कि हम उसकी ईमेल लेंगे, सबसे पहले पास टीचर नेम करेंगे, ईमेल ले लेंगे, तो हम 2 सेक्शंस ले लेंगे उसकी ईमेल आईडी से, क्योंकि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करता है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो अगर इक्वल है या नहीं है, तो अगर तो इक्वल होगा तो वो 2 सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं है तो वो नहीं पढ़ा रहे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको भी हम सिंपल यहाँ पे हम टीचर्स नेम पास करेंगे और हम देख लेते हैं कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ और यहाँ पे हमें जी से कोई मैं डाटा उठा लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल कोई नाम की तरह टीचर्स के, यस ये नाम है। तो फर्स्ट के मैम आमना इरम जो मुझे डिस्क्रीट पढ़ा रही है, मैं अगर उन्हीं का उठा लेता हूँ, वो तो कुछ ज़्यादा सेक्शंस को पढ़ाती हैं, तो मैं यहाँ पे अगर चेक भी कर लेता हूँ वो ज़्यादा सेक्शंस को पढ़ाती हैं या नहीं पढ़ाती, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, और इसने किया। और अगर मैं दूसरी दफ़ा नाम पास करता हूँ किसी और का, ये मैम इसका करूँ, यहाँ से किसी का भी इनका कर लेता हूँ, कंट्रोल C। ये मेरे ख्याल से एक कोर्स ही पढ़ाती है मैम, यस एक कोर्स। तो ये मैम फरवा बतूल आ गया, ये कोर्स में नहीं है इसलिए मसला करेगा, ये फॉल्स आ गया, तो ये बिल्कुल सही हो गई। सो आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड ऑल द basic concept and I have run the example and I have shared all that how I ran all these odd number of queries मेरी odd थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो ग्रुप मेंबर है जैन आबिदीन, वो अपने प्लीज जो पार्ट्स है, जैन प्लीज इफ फ्रॉम द सो माय नेम इज़ अलाउद्दीन एंड ये मेरे बिलाल सईद पार्टनर थे जिन्होंने आपको सब कुछ गाइड किया। इनकी और क्वेरीज थी और इन्होंने आपको नॉलेज बेस के बारे में, प्रोलॉग के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब मेरी बारी है कि मैं इवन क्वेरीज रन करूं। सो पहले हम अपना प्रोलॉग ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं और उसको अपनी फाइल से लिंक कर लेते हैं जिसमें हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है। सो हमें ये वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने वेरिएबल के नाम सेम रख दिए काफ़ी। सो ये मेरी एक फाइल है सारी जिसमें मेरा डाटा पड़ा है, फैक्ट्स, क्वेरीज, इन्होंने आपको सब कुछ बताया बिलाल सईद ने। तो सबसे पहले अब इवन क्वेरी स्टार्ट करते हैं टीचिंग। इसमें ये होता है कि एक टीचर का नेम पास हो रहा है, इसको आप सपोज कर लेते हैं कि C++ फंक्शन ही होता है, उस तरह पैरामीटर पास हो रहे हैं। एक टीचर नेम पास हो रहा है और एक कोर्स नेम पास हो रहा है, और ये बताएगा कि टीचर वो सब्जेक्ट टीच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको हम यहाँ रन करते हैं और यहाँ से हम कोई एक टीचर का नाम उठा लेते हैं। सपोज कर लें कि हम यहाँ से उठा लेते हैं टीचर के नेम की तरफ। सपोज हम यहाँ से अब्दुल हलीम उठा लेते हैं।
इसको हमने फर्स्ट पैरामीटर इधर पास कर दिए। अब सेकंड पैरामीटर हम कोई सब्जेक्ट पास करते हैं जो ये बताएगा कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर या नहीं पढ़ा रहे। सपोज हम इनको पास करते हैं कोई सब्जेक्ट ऊपर से, सब्जेक्ट वाला पोर्शन ये है। सपोज हम डेटा स्ट्रक्चर पास करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। तो ये हमें यहाँ बता रहा है कि फॉल्स आ रहा है, क्यों? इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ा रहे। उसके बाद हम कोई एग्जांपल रन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल रन करते हैं जो हमें टू रन कर रही हो। इसमें हम फर्स्ट पैरामीटर को टीचर का नाम पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम शम्स फारूक पास करते हैं जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ये सर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं इसलिए। और ये पढ़ाते हैं हमें सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट हमें कॉल होता है, वो हम ऊपर से सब्जेक्ट क्वेश्चन से दे देते हैं। ये सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। सी कंट्रोल लेट मी चेक क्या एरर दे रहा है। एक मैंने ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाल दिए थे इसलिए एरर दे रहा था। यहाँ मेरा यार इशू आ रहा है। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पहले रन की थी शम्स फारूक, जो टीचर रन किए थे अब्दुल हलीम जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे थे। अब मैंने सर शम्स फारूक का रन किया जो हमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम रन करते हैं साइड जो लेक्स क्यूरियो मेरी वो जी कि रूम क्लूजन तो नहीं आ रही। अब रूम क्लूजन का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट्स सेम रूम में तो नहीं हो रहे, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। रूम क्लूजन सी, इसको हम 2 आर्गुमेंट पास कर देते हैं। सपोज करते हैं कि हम कोई सब्जेक्ट यहाँ से उठा लेते हैं, सब्जेक्ट यहाँ से हमें मिल जाएंगे। ये हम ये उठा लेते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और दूसरा पैरामीटर हम इसको दे देते हैं, यहाँ से ये उठा लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटा साइंस। तो आप देख सकते हैं फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 सब्जेक्ट्स एक रूम में नहीं है, रूम क्लियर नहीं हो रही। इसके बाद हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये कर रहे हो। तो सपोज करते हैं कि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, कोई और सब्जेक्ट पेश कर देते हैं जो आई थिंक ये सब्जेक्ट कोलाइड करेंगे इसके साथ। तो हम यहाँ से ये पास करते हैं सेकंड पैरामीटर से। यहाँ से हम सेमीकोलन डाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रू और रिटर्न कर रहे हैं हमें। उसके बाद हम थर्ड क्वेरी हमारी क्या, उस पर हम चले जाते हैं। थर्ड क्वेरी हमारी ये है कि हमने रूम चेक करना है। इसमें हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। आप देख सकते हैं रूम पास किया है, डेट पास किया, स्टार्टिंग टाइम पास किया है। तो ये हमें बताएगा कि इस रूम में इस टाइम ये पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इसको यहाँ से यूँ 3 चीज़ें पास कर देते हैं। ये 3 पैरामीटर्स ले रहा है, तो हम यहाँ से इसके तीनों पैरामीटर्स उठा लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर रूम ले रहा है ये, तो ये रूम यहाँ से हम ये ले लेते हैं, ये हम यहाँ पेश करते हैं। सेकंड पैरामीटर ये हमारा शायद ले रहा है, सेकंड पैरामीटर ये हमारा रूम डेट ले रहा है, ये यहाँ से हम इसको 1 पास करते हैं। और थर्ड पैरामीटर ये हमारा स्टार्टिंग टाइम ले रहा है जो ये है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो देख सकते हैं ट्रू है इस रूम में, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि डेटा में मौजूद है कि इस रूम में ये पेपर हो रहा है 9 बजे। और थर्ड 3 क्यूरीज होगी मेरी। अब मैं फोर्थ क्यूरी रन की तरफ जाता हूँ जो है डुप्लीकेट रोल नंबर। इस क्यूरी में ये हो रहा है कि हम इसके नेम पास करेंगे, ये बताएगा कि इस नेम के एक और स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इससे हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट सी कंट्रोल वी। इसको हम एक पैरामीटर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम दे देता हूँ।
इसको हम कॉमा स्क्वायर डाल लेते हैं। इसका मतलब है कि मेरे नाम के 2 लड़के हैं और अब एक और एग्जांपल हम इसकी सपोज कर लेते हैं, मेरे पार्टनर की सपोज करते हैं बिलाल सईद की। ये मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि इस नाम के 2 नहीं हैं जिनके रोल नंबर डिफरेंट हो। इसमें मेन ये है कि नाम सेम होना चाहिए, रोल नंबर डिफरेंट होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं लास्ट में टीचिंग 2 कोर्सेज। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे इंस्ट्रक्टर पास चेक करेंगे, ये हमें बताएगा कि एक इंस्ट्रक्टर से पास करेंगे नेम उनका, जो बताएगा हमें कि कोर्स टीच कर रहे हैं 2 या नहीं कर रहे। तो हम इस चेक कर लेते हैं इसके पास करके। सबसे पहले हम इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम पास कर देते हैं, पास कर लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह ऐड किया फातिमा फरूक टीचर का नाम, बता रहा है कि ये टीचर 2 कोर्स नहीं पढ़ा रहे। इसके बाद हम यहाँ ऐसे टीचर का नाम को पास कर देते हैं, 2 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं फरूक। तो ये 2 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं टीचर। तो ये सब क्वेरीज थी मेरी, इवन नंबर वाली क्वेरीज थी। बिलाल सईद ने आपको ऑड के बारे में गाइड किया था सब। तो ये मेरी साइड से बस, थैंक यू।